धारासभ्य श्री गणपतभाई वसावा, 84 धारासभ्य श्री संदीपभाई देसाई, महुआ धारासभ्य श्री मोहनभाई डोडिया, कृषि विभागना अधिक मुख्य सचिव श्री मैडम मंजू शर्माजी, ICAR डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मांगीलाल जाटजी, सूरत जिला कलेक्टर श्री, सूरत जिला विकास अधिकारी श्री, ICAR डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजवीर सिंह जी, खेती नियामक श्री PS रबारी जी, बागायत नियामक श्री HM चावड़ा जी, नियामक श्री समिति और स्टेट नोडल ऑफिसर श्री आत्मा SK जोशी जी, उपस्थित सर्वे खेडूत प्रतिनिधियों, उपस्थित भाइयों, समारंभમાં આપણી વચ્ચે આવ્યા છે। સૌપ્રથમ તો હું આદરણીય શ્રી ચૌહાણ સાહેબનું રાજ્યના ખેડૂતો વતી દિલથી સ્વાગત કરું છું। સરદાર સાહેબની 150મી જન્મ જયંતિનું ઉજવણીનું વર્ષ આખા દેશમાં જ્યારે ભારતમાં ઉજવાઈ રહ્યું છે ત્યારે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત અંતર્ગત આપણે આજે બારડોલી ખાતે સરદાર સાહેબની કર્મભૂમિ કે જ્યાંથી સરદાર સાહેબે 12મી જૂન ખેડૂતોના મહેસૂલી કર વધારાના વિરોધમાં અંગ્રેજ સરકાર સામે જબરજસ્ત આંદોલન શરૂ કર્યું હતું અને અંતે વિજય મેળવ્યો હતો અને આ આંદોલન પછી સરદાર સાહેબ દેશભરના ખેડૂતોમાં સરદારના નામે આઝાદીની લડતમાં આઝાદી ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવનાર દેશની એકતા અને અખંડિતતાના શિલ્પી સરદાર વલ્લભભાઈ અને હું એને સત નમન કરું છું। વિકસિત ભારત કૃષિ સંકલ્પ અભિયાન 29/5 થી આજે 12/6 સુધી રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ AICR વૈજ્ઞાનિકો, યુનિવર્સિટીના નિષ્ણાતો અને અધિકારીઓ દ્વારા સમગ્ર રાજ્યમાં ફરી ખેડૂતો પાસે જઈ અને ખેડૂતોને આધુનિક ખેતી વિશે માર્ગદર્શન આપી વધુ કેમ ઉત્પાદન મેળવી શકાય, સારું બિયારણ, યાંત્રિક સાધનોનો વપરાશ અને ખાતરના વપરાશ અંગે વિગતવાર જાણકારી આપી અને રાષ્ટ્રના કૃષિ ઉત્પાદનના વિકસિત કરવા માટે ખૂબ મહત્વનું કહી શકાય એવું આ અભિયાન આજે પૂર્ણાહુતિના આરે છે। ત્યારે અહીં પધારેલા ખેડૂત ભાઈઓને કહેવા માગું છું કે આપણે તો ગુજરાતમાં આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન અને ગુજરાતના પનોતા પુત્ર નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી થયા 2001થી ત્યારથી જ એણે કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસ માટે કૃષિ મહોત્સવ દર વર્ષે યોજવાની શરૂઆત કરી હતી અને આ જ પ્રકારે ખેતીવાડી અધિકારીઓ, વૈજ્ઞાનિકો બધાને ગામડે મોકલી અને લેબ ટુ લેન્ડ ખેડૂતો અને નિષ્ણાતો બધાને સાથે બેસાડી એની સમસ્યાઓ વિશે જાણકારી મેળવી અને ખેડૂતોની સમસ્યાના સમાધાન માટેનો જે ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો હતો એના પરિણામે આજે ગુજરાત કૃષિવાડી ક્ષેત્રે વિકસિત રાજ્ય બન્યું છે અને 10%થી વધુનો વિકાસ દર હાંસલ કર્યો છે। એનો શ્રેય આપણે આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આપીએ તો એમાં ખોટું નથી અને નરેન્દ્રભાઈના પગલે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે પણ એ જ નીતિ અપનાવી રાજ્યના કૃષિ વિકાસને વેગ આપવા માટે પૂરતા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે। હું યાદ કરાવું કે આજે આદરણીય શ્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણ કરતા
એ વધુને વધુ ખેડૂતો પ્રાકૃતિક કૃષિ અપનાવતા થાય એના માટેનું માર્ગદર્શન પણ આપ્યું છે। ત્યારે હું ચૌહાણ સાહેબને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસ માટે, કૃષિ યાંત્રીકરણ માટે રાજ્ય સરકાર ખૂબ ધ્યાન આપી ને એ અરજી ઓનલાઈન મંજૂર થાય અને એને ચૂકવવાપાત્ર સહાયની રકમ ઓનલાઈન ડીબીટીથી ડાયરેક્ટ ખેડૂતના ખાતામાં જમા થાય એવી યોજના રાજ્ય સરકારે દાખલ કરી અને આ રાજ્યના ખેડૂતોને ક્યાંય સહાય માટે હેરાન ન થવું પડે, ઓફિસે ભટકવું ન પડે એના માટેનું એક સુંદર આયોજન કર્યું છે। ડ્રોન ટેકનોલોજીના માધ્યમથી દવાઓ અને ખાતરો સરળતાથી ખેડૂતો એનો છંટકાવ કરી શકે એના માટેનું ખેડૂતોને એકર દીઠ ₹500ની અને વધુમાં વધુ 5 એકર સુધી અને 5 વાર છંટકાવ માટેની યોજના પણ દાખલ કરી છે। અને સખી મંડળની બહેનોના માધ્યમથી કૃષિ સખી દ્વારા આ ડ્રોન યોજનાનો ખૂબ સફળતાપૂર્વક રાજ્યમાં અમલ થઈ રહ્યો છે। એવી જ રીતે આપણે નેનો ટેકનોલોજી આધારિત સંપૂર્ણ સ્વદેશી ઉત્પાદિત નેનો યુરિયા અને નેનો ડીએપી 50% રાહત દરે ખેડૂતોને મળી રહે એના માટે પણ સરકારે પૂરતા પ્રમાણમાં આયોજન કર્યું છે, જેનાથી આપણે ખાતર આયાતમાં જે વિદેશી ઊંડિયામણનો મોટો ખર્ચ કરવો પડે છે એ ખર્ચ પણ બચશે, ખેડૂતોની જમીનને પણ ફાયદો થશે, ઉત્પાદન પણ વધશે। એટલા માટે ખેડૂત ભાઈ બહેનો નેનો ટેકનોલોજીનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરે એના માટે આ તકે મારી સૌ ખેડૂત ભાઈઓને નમ્ર વિનંતી છે। ખેડૂતો એ ફાર્મર્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન, ફાર્મર્સ પ્રોડ્યુસર ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે એફપીઓ રચી અને એફપીઓના માધ્યમથી પોતાના ઉત્પાદન વસ્તુઓને વેલ્યુ એડિશન કરી શકે અને પોતાની જણસીઓનું વેલ્યુ એડિશન કરી અને નિકાસ પણ કરી શકે એના માટે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા પૂરતા પ્રમાણમાં સહાય અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે, જેના પરિણામે રાજ્યમાં 100 જેટલા એફપીઓ અત્યારે કાર્યરત છે અને કૃષિ વિકાસમાં ખેડૂતો માટે ખૂબ જ મદદરૂપ થઈ રહ્યા છે। આ તકે ઉપસ્થિત સૌ કિસાન ભાઈઓને નમન કરીને કહેવાનું કે આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની નેમ છે કે મારે કિસાનોની આવક ડબલ કરવી છે, ખેતી ખેડૂત અને ગામડાને સમૃદ્ધ કરવા છે અને 2047ના જે વિકસિત ભારતનું સ્વપ્ન નરેન્દ્રભાઈ મોદી જોઈ રહ્યા છે એમાં આપણા ગુજરાતનો ખેતી ક્ષેત્રે વધુમાં વધુ વિકાસ થાય અને વિકસિત ખેતીના માધ્યમથી આપણે વિકસિત ભારતના સંકલ્પમાં સહયોગ આપી શકી એના માટે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર બંને ખેડૂતોને મદદ આપવા માટે, ખેડૂતોને માર્ગદર્શિત કરવા માટે અને ખેતીવાડીનો વિકાસ વધુને વધુ થાય એના માટે પૂરતા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે। ત્યારે બારડોલી ખાતેના આ ખેડૂત સંમેલનમાં ઉપસ્થિત સૌ ખેડૂત ભાઈઓને હું મારા નમસ્કાર કરી અને મારી વાત પૂરી કરું છું। આભાર। અસ્તુ। ભારત માતા કી જય। ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય કૃષિ મંત્રી શ્રી આપના પ્રેરણાદાયી ઉદ્બોધન માટે। અને હવે નિહાળીશું તારીખ 29મી મેથી 12મી જૂન સુધી ગુજરાતમાં જે વિકસિત કૃષિ સંકલ્પ અભિયાન 2025 યોજાયું તેની સિદ્ધિઓ દર્શાવતી એક ટૂંકી ફિલ્મ।
किसानों के पसीने की एक एक बूंद राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत नींव है। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व एवं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में विकसित भारत की दिशा में एक नई क्रांति के रूप में शुरू हुआ विकसित कृषि संकल्प अभियान। इस अभियान को माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में आनंद कृषि यूनिवर्सिटी एवं माननीय कृषि मंत्री श्री राघव जी पटेल के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र तरघड़िया राजकोट से शुभारंभ करके पूरी ऊर्जा के साथ गुजरात में आगे बढ़ाया है। राज्य के विभिन्न जिलों में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से गुजरात के किसान लाभान्वित हुए हैं। इन आयोजित कार्यक्रमों में वैज्ञानिक, एफपीओ और प्रगतिशील किसान जुड़े थे। इस अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों की टीम लैब से लैंड ये एक बड़े महान अभियान के लेकर के आगे जा रही है। सारे डेटा के साथ किसानों को आधुनिक कृषि की जानकारी देगी और सीजन शुरू होने से पहले किसानों की मदद के लिए खड़ी रहे। इस अभियान के तहत प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर किसान कैसे अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, इस पर दिशा निर्देश, खेत में डिजिटल तरीके, मैट्रिक्स और आईओटी के उपयोग के माध्यम से कृषि नवाचार, कृषि उपज का मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, प्रसंस्करण और बाजार से जुड़ा एफपीओ, सहकारी समितियां और कृषि वित्त और उद्योगों को तकनीकी सहायता। ખેડૂતોને કેવી રીતે પાક મેળવવો, કેવા વાતાવરણમાં મેળવવો, કેટલું ખાતર अब कृषि का एक नया सवेरा आ रहा है, जहां किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वे विकास के नायक हैं। यही संकल्प लें। स्थायी, तकनीकी और वैज्ञानिक कृषि के भविष्य की ओर माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की उपस्थिति में विकसित कृषि संकल्प अभियान के समापन के साथ आओ विकसित गुजरात, विकसित किसान का संकल्प साकार करें। विकसित भारत के लिए जरूरी है विकसित किसान, विकसित कृषि। एग्रीकल्चर हमारा कल्चर है, हमारे किसान हमारी ताकत है। भारत के किसान और कृषि समृद्ध बने, इस दिशा में अपना अनूठा योगदान दे रहे हैं भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी। आज हमारे लिए अपार प्रसन्नता का विषय है कि माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी आज गुजरात के अतिथि बने हैं और यहाँ बारडोली में पधारे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं और सादर अनुरोध करते हैं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी को अपने प्रेरणादायी संबोधन हेतु पधारें। बोलिए भारत माता की। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की कर्मभूमि है, जिन्होंने पूरे देश को एक रखा है। भारत माता की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मंच पर विराजमान गुजरात के सहज, सरल, धैर्यशील, कर्मठ और गुजरात को प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे कृषि मंत्री जिनसे लगातार मेरा संवाद और संपर्क बना रहता है, राघव जी पटेल, श्रम और रोजगार मंत्री श्री कुंवर जी भाई हलपति जी, हमारे लोकप्रिय सांसद प्रभु भाई बसावा जी, मुकेश भाई दलाल जी, विधायक बारडोली ईश्वर भाई परमार जी, मांगरौल के विधायक गणपति भाई बसावा जी, महुआ के विधायक मोहन भाई डोडिया जी,
84 के विधायक भाई संदीप देसाई जी, जिला पंचायत सूरत की प्रमुख बहन श्रीमती भावना बहन जी, अंजू शर्मा जी, ICR के DG श्री मागीलाल जाट जी, कलेक्टर सूरत सहित सभी वैज्ञानिकगण, अधिकारीगण, और केवल आज बारडोली में नहीं 2170 टीमें वैज्ञानिकों की गांव-गांव में हैं अभी, और पूरे देश में आज बारडोली से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं 2170 जगह। तो भारत भर में जुड़े हुए मेरे किसान भाइयों, बहनों, वैज्ञानिक साथियों और सभी कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी साथियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। केम छो? जब तक मजामा ना सुन ले तब तक मजा ही नहीं आता। मजामा। और मेरा सौभाग्य है इस पवित्र धरती पर गुजरात की बारडोली, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कर्म भूमि है, नहाने का सौभाग्य मिला। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। ये वो धरती है जहां सन 1928 को, आज के दिन ही 12 जून को, बारडोली सत्याग्रह के लिए बैठक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी, और किसानों पर अंग्रेजों ने जो अत्याचार किया था, 22% टैक्स की वृद्धि की थी, उसके खिलाफ संघर्ष छेड़ा था। और यह खुशी की बात है कि बहनें आज बड़ी संख्या में आई है। उस बारडोली सत्याग्रह में भी बहनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। बढ़ चढ़ के आगे रह के बहनों ने भाग लिया था, और उनके कारण अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। और यहीं एक बहन ने सरदार की उपाधि, हमारे नेता, हमारे आदर्श, हमारे मार्गदर्शक, भारत को एक रखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि से नवाजा था। ये वो पवित्र धरती है, सचमुच में मेरा रोम रोम पुलकित है। उनके चरणों में फिर प्रणाम। वैसे भूपेंद्र भाई, गुजरात से मेरा बड़ा रिश्ता है, क्योंकि भोपाल जब मैं पढ़ने गया अपने गांव से, तो मेरा एडमिशन भोपाल में गुजराती समाज स्कूल में ही कराया गया, मारवाड़ी रोड भोपाल में। और दूसरी बात, नर्मदा जी जो गुजरात को भी पानी देती है, मेरे गांव बिल्कुल नीचे नर्मदा जी, ऊपर मेरा घर, तो नर्मदा मैया भी गुजरात और मध्य प्रदेश को जोड़ती है। और ताप्ती मैया भी दूर नहीं है, मूल तापी से ताप्ती निकलती मुल्ताई से, वो भी मेरे गांव के पास में ही है। और इसलिए वैसे तो हम सब भारत माँ के लाल, लेकिन गुजरात से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूं दिल से। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। किसान बहनों और भाइयों, गुजरात ने अनेकों महापुरुष दिए। यहां संत, ऋषि, महर्षि, क्रांतिकारी और देश को दिशा देने वाले, दुनिया को दिशा देने वाले महापुरुष। एक महात्मा गांधी जी, जिन्हें सत्य अहिंसा के अस्त्र से अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर किया और दुनिया को नया रास्ता दिखाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर ना होते तो भारत का यह स्वरूप ही नहीं बचता। अगर आज भारत एक है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के कारण एक है। 550 से ज्यादा देशी रियासतों का विलय अगर करवाया तो सरदार साहब ने करवाया। बाकी राज्यों के विलय का मामला सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का मामला पंडित नेहरू जी ने कहा कि मैं देखूंगा। अगर वो भी सरदार साहब के पास होता तो पीओके नाम की कोई चीज ही नहीं होती, पूरा का पूरा भारत हमारा होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश को एक रखा। और ये मैं अंतर आत्मा से कह रहा हूं, नरेंद्र भाई मोदी ऐसी देन है देश को गुजरात की, जिसके लिए सारा देश गुजरात का ऋणी रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। 11 साल में कितना बदल गया हिंदुस्तान।
मैं मुख्यमंत्री 4 बार रहा हूं। पहले दुनिया के किसी देश में मुख्यमंत्री के नाते अगर जाते थे 14 के पहले तो कोई मान सम्मान नहीं मिलता था। इंडिया से आया है और आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। भारत को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। 11 साल में पूरा देश बदल गया। एक नई राजनीतिक संस्कृति प्रधानमंत्री जी ने की। कोई भी क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, खेती का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, विज्ञान का हो, कृषि का हो, माताओं बहनों का सशक्तिकरण हो, नौजवानों को नए अवसर हो, किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाना हो या गरीबों का कल्याण हो, अद्भुत काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। सचमुच में हम सौभाग्यशाली है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं और भारत निरंतर बढ़ रहा है। मैं आज उस विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का विषय अभी केवल कृषि है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब मैं कृषि मंत्री बना तो हमने पूसा में एक कार्यक्रम किया आईसीआर के अनुसंधान में। नए बीज बनाए थे कई, तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि इन बीजों को आप लोकार्पित कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने उस समय मुझसे कहा कि देखो भाई, इतने वैज्ञानिक अपने पास, वैज्ञानिकों की इतनी बड़ी टीम, ये वैज्ञानिक लैब में रिसर्च करते हैं और किसान खेत में खेती करता है। ये लैब टू लैंड जुड़ते ही नहीं है। अगर वैज्ञानिक निकल के खेतों में, गांवों में किसानों के बीच पहुंच जाए तो खेती में और चमत्कार हो सकता है। इसको हमने मंत्र माना और इसलिए हमने बनाया विकसित कृषि संकल्प अभियान। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, और विकसित भारत बिना खेती के नहीं बन सकता। हमने कहा विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, इसके लिए अभियान चलाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 18% से ज्यादा जीडीपी में कृषि का योगदान और 50% को आज भी रोजगार देती है। खेती के बिना इस देश का काम नहीं चल सकता। और कृषि मंत्री के नाते किसान भाइयों, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि कृषि और ग्रामीण विकास का काम मुझे दिया। और कृषि मंत्री के नाते मैं हमेशा कहता हूं मैं कहीं अतिथि नहीं हूं। अतिथि तो मेहमान होता है, मैं मेहमान थोड़ी हूं, मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। हम लोगों ने तय किया कि वैज्ञानिक लिखने के 16,000 वैज्ञानिक भारत में, कृषि वैज्ञानिक 16,000 अलग अलग आईसीआर के संस्थानों में, केवीके में हमने अलग अलग 2170 टीमें बनाई और वैज्ञानिक निकल पड़े राज्य सरकार के साथ, केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ। गांव गांव में, यहां गुजरात का एक दृश्य हम देख रहे थे। यहां तो पहले से भी कृषि महोत्सव का कार्यक्रम चलता है, साल में एक बार पहले से होता है, जहां खरीफ की फसल के पहले या रबी की फसल के पहले कैसी खेती करनी चाहिए, जो रिसर्च किए वैज्ञानिकों ने, वो किसान के पास पहुंचना चाहिए। अगर किसान के पास नहीं पहुंचते तो उस रिसर्च का मतलब क्या है? और इसलिए सारे वैज्ञानिक गए, इसलिए अलग अलग गांव में गए, वहां की पूरी कुंडली लेके गए कि आपके गांव की माटी कैसी है, जलवायु कैसी है, माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है, कितना जिंक है, कितना नाइट्रोजन है, कितना पोटास है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, और उसके हिसाब से कौन सी फसल ठीक होगी, कौन से बीज ठीक रहेंगे, अगर वायरस का अटैक रहे तो उनका मुकाबला कैसे करना है। तो ये बताएंगे भी और किसान जो बताएंगे वो सुनेंगे भी, क्योंकि कई बार कई चीजें लैब में बैठ के पता नहीं चलती। अभी हमने एक कृषि चौपाल लगाया प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के साथ। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपको शानदार काम प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में गुजरात की सरकार कर रही है। किसान चमत्कार कर रहे हैं हमारे, और केवल प्राकृतिक खेती में नहीं, गुजरात ने तो कई चीजों में कमाल किया है। मित्रों, ये गुजरात की पवित्र धरती है जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, अलग अलग तरह की योजनाएं बनाती है, किसानों को कई तरह की सुविधाएं देती है, और उसके आधार पर किसानों की खेतियां फायदे का धंधा बनती है। मेरे मित्रों, गुजरात में अगर हम देखेंगे धान, गेहूं, मूंगफली, सोयाबीन, मक्का, ये खाद्यान्न पैदा होते हैं। अरंडी, जीरा, सौंफ, खजूर जैसे विशिष्ट कृषि उत्पादों में गुजरात नंबर 1 है।
गुजरात भारत का 77% अरंडी, 44.5% मूंगफली, 24% कपास उत्पादित करता है। चना में भी 15% अकेला चना गुजरात पैदा करता है। और गुजरात खेती में नित नए प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण खेती के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन करके गुजरात का किसान लगातार आगे बढ़ रहा है और देश को दिशा दिखाने का काम कर रहा है। यहां से कई चीजों का एक्सपोर्ट होता है। यहाँ की हार्टिकल्चर बहुत उन्नत है। आज हमने प्राकृतिक खेती के किसानों के साथ बातचीत की है, मुझे बहुत आनंद हुआ सचमुच में। प्राकृतिक खेती के किसानों ने बताया कि लागत घटती है, उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता और जो चीजें पैदा होती वो गुणवत्ता पूर्ण पैदा होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो कृषि के रोड मैप है, उनका खेती को कैसे आगे बढ़ाना है, फायदे का धंधा कैसे बनाना है, तो उनके 6 सूत्र है। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, नंबर 2 उत्पादन की लागत घटाना, नंबर 3 उत्पादन के ठीक दाम देना। कल ही राघव जी भाई के साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उन्होंने कहा कि मूंग खरीदना है, मूंग बहुत पैदा हो गई, तो कल ही हमने फैसला किया कि गुजरात मूंग भी खरीदे और गुजरात मूंगफली भी खरीदे। ये नीति है भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करना और उस पर खरीदने का इंतजाम करना, नुकसान हो जाए तो भरपाई, और उसके बाद कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, अलग अलग तरह के खेती में प्रयोग करना। तो प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर भारत की कृषि और किसान आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उसी का एक प्रयत्न था कि वैज्ञानिक गांव में जाएं। तो वैज्ञानिक जा रहे हैं तो कई तरह की नई चीजें भी मिल रही है। अब देखो, रिसर्च कई बार वैज्ञानिक लैब में करें और उस रिसर्च का फायदा जमीन पे किसानों को हो ही नहीं, तो मतलब क्या है? कई बार किसान जो समस्याएं बता रहे हैं, उन समस्याओं को सुन के अब हमारे वैज्ञानिक वैसी रिसर्च करेंगे जिसकी डिमांड है, जिसकी मांग है। रिसर्च उन क्षेत्रों में होगी और इसलिए पूरे देश में जो वैज्ञानिकों की टीम बैठी है और किसान भाई बैठे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं, ये विकसित कृषि संकल्प अभियान आज खत्म नहीं होगा। औपचारिक रूप से अभियान खत्म होगा, लेकिन नया अभियान चालू होगा। कृषि वैज्ञानिक, किसान, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी। एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम की भावना से ये वैज्ञानिक और कृषि विभाग किसानों के साथ लगातार खड़ा रहेगा, संवाद करेगा, संपर्क करेगा और खेती के दिशा को और बदलने की कोशिश करेगा, ताकि हम देश के अन्न के भंडार भी भर सकें। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि दुनिया का फूड बास्केट अगर कल कोई बनेगा तो भारत बनेगा। हम अपनी जनसंख्या का, अपनी जनता का भी पेट भरेंगे और दुनिया का पेट भरने का काम भी भारत करेगा। आज भी कई देशों को हम निर्यात कर रहे हैं। किसान भाइयों, मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहता हूं, हम खेती करते हैं, लेकिन खेती में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल ये बहुत जरूरी है। मैकेनाइजेशन ये बहुत जरूरी है। पर ड्रॉप मोर ड्रॉप पानी बचाना और पानी का बेहतर उपयोग ये बहुत जरूरी है। नए बीजों के प्रयोग, मैं प्राकृतिक खेती के किसानों को भी बधाई देता हूं। इस साल हमने तय किया है कि कम से कम हम 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती करेंगे। राज्यों के साथ मिलकर 18 लाख किसान तैयार हुए प्राकृतिक खेती करने, गुजरात के अलावा भी पूरे भारत में। तो प्राकृतिक खेती जैसे प्रयोग भी करेंगे और वैल्यू एडिशन करके ठीक दाम मिले, इसका प्रयास करेंगे। भारत की कृषि उन्नत हो और किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। अगर किसान समृद्ध हो गया तो सचमुच अपनी तो जिंदगी सफल हो गई, क्योंकि कृषि विभाग है ही इसलिए। और इसलिए इस बड़े कार्यक्रम का हमने आयोजन किया था। ये वैज्ञानिकों का, किसानों का संपर्क, संवाद लगातार एक टीम के रूप में बना रहेगा। मैं गुजरात की सरकार को फिर एक बार बधाई देता हूं कि गुजरात सब दिशाओं में अभूतपूर्व प्रगति और विकास कर रहा है और यहां तो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन सदैव मिलता है। अमित भाई की रणनीति का लाभ भी हमेशा आपको मिलता है। आज गुजरात से इस विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन करते हुए मुझे प्रसन्नता है, क्योंकि गुजरात देश के किसानों को भी दिशा देगा। और मैं फिर आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि कृषि का यह अभियान रुकेगा नहीं, अब नए सिरे से चालू होगा। किसानों की आय बढ़ानी है, देश के अन्न के भंडार भरने और दुनिया को भी खिलाना है। इसके लिए हम लगातार काम जारी रखेंगे। मैं एक बार फिर सभी वैज्ञानिकों को हृदय से बधाई देता हूं। लैब से निकले, वो लैंड पे गए, मेहनत से गए, किसानों से संवाद किया और मुझे बताते हुए
प्रसन्नता है कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ 12 लाख किसानों से संवाद किया। यह संवाद कोई बड़ी सभा में नहीं हुआ, कहीं 200 किसान, कहीं 150 किसान, कहीं 250 किसान, कहीं 300 किसान और वैज्ञानिक। हमारी अपेक्षा इतनी थी और लगभग हम 1 लाख से ज्यादा गांव पहुंचे, 1 लाख से ज्यादा गांव पहुंचे, 55,000 से 1 लाख से ज्यादा 55,000 से ज्यादा जगह कार्यक्रम हुए और वहां 2-3 गांव के लोग आए। तो हमने कृषि की दिशा बदलने की एक कोशिश की है। लगातार ये प्रयत्न जारी रहेगा। मैं सभी वैज्ञानिकों को फिर हृदय से बधाई देता हूं और प्रगतिशील किसानों ने भी चमत्कार किया है। ऐसे ऐसे उदाहरण मिले कि मैं खुद आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि केवल बड़े कार्यक्रम नहीं किए हमने, मैं तो छोटे छोटे चौपाल सभा में गया जहां 200, 300, 250, 100 ऐसे किसान होते थे और उनसे डिस्कस करते थे। और जब वो अपने प्रयोग बताते थे तो मैं पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, केवल दुगना नहीं, कई किसान ऐसे मिले जिन्होंने 10-10 गुना भी अपनी आमदनी बढ़ा के बताई है, अलग अलग नवाचार करके। ऐसे किसान वास्तव में असली वैज्ञानिक हैं। इनसे भी मार्गदर्शन हमको मिलेगा और एक टीम के रूप में लगातार अपने किसानों के लिए और अपनी खेती के लिए हम बेहतर काम करते रहेंगे। मैं यहां बैठे हुए किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में प्रणाम करता हूं और देश को यह विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में खेती और किसान को आगे बढ़ाने के लिए हमारा अभियान निरंतर जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथ एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की और गुजरात और देश के किसानों की जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी आपके आत्मीयतापूर्ण शब्दों के लिए। અને હવે વિનંતી કરીએ છીએ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને કે આપ રિમોટનું બટન દબાવી બાગાયત વિભાગના મજીવાણા, પોરબંદર અને ઈશરામાં પેટલાદ ખાતેના સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ, કુકમા ભુજ ખાતેના પ્રાઇમરી પ્રોસેસિંગ સેન્ટર અને ગુજરાત રાજ્ય બીજ નિગમના 14 ગોડાઉનનું ઈ લોકાર્પણ અને સાથે બારડોલી ખાતે શેરડીના એક્સલન્સ સેન્ટરનું ઈ ખાતમુહૂર્ત કરશો। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजथी लई बजार सुधी ने वावेतरथी लई वेचाण सुधी ખેડૂત મિત્રોની કરે દરકાર એ છે મૃદુ અને મક્કમ ગુજરાત સરકાર। આવો ખૂબ તાળીઓના આદર સાથે આમંત્રિત કરીએ ગુજરાત રાજ્યના પ્રજાવત્સલ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને કે જેઓ ગુજરાતના સર્વાંગીણ વિકાસના પ્રહરી છે। આપના ઉદ્બોધન માટે પધારશો। एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्गत सरदार वल्लभभाई पटेलनी 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણી નિમિત્તે ખેડૂત સંમેલન 2025 અને વિકસિત કૃષિ સંકલ્પ અભિયાન સમાપન કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રી શ્રી શિવરાજસિંહજી ચૌહાણ, મારા સાથી મંત્રી શ્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ, મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઈ હળપતિ, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રીમતી ભાવિનીબેન પટેલ,
सांसद श्री प्रभुभाई वसावा, श्री मुकेशभाई दलाल, मारा साथी धारासभ्य श्री ईश्वरभाई परमार, श्री गणपतभाई वसावा, श्री संदीपभाई देसाई, श्री मोहनभाई डोडिया, जिला भाजप प्रमुख श्री भरतभाई राठौड़, कृषि विभागना अधिक मुख्य सचिव श्रीमती अंजुबेन शर्मा, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मांगीलाल जाट, सूरत जिला कलेक्टर डॉक्टर सौरभ पारगी जी, उपस्थित अधिकारीगण तथा समग्र देशभर में 2170 जगह आ कार्यक्रम निहाળી रहेला सौ किसान भाईओ बहनों, उपस्थित सौ किसान भाईओ बहनों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। देशना स्वराजनी लड़त माटेनी एक महत्वपूर्ण स्थान અને એક ભારત અખંડ ભારતના શિલ્પી લોહ પુરુષ શ્રી વલ્લભભાઈ પટેલની કર્મભૂમિ બારડોલીની આ પુણ્યભૂમિને અને સરદાર સાહેબની ચરણોમાં હું કોટી કોટી વંદન કરું છું। ખેડૂતો પર તત્કાલીન અંગ્રેજ સરકારે નાખેલા મહેસૂલી વેરા લગાનનો વિરોધ કરીને સરકારને એ વધારો રદ કરવા મજબૂર કરનાર बारडोली खेडूत सत्याग्रह थी बारडोली देश विदेश में प्रसिद्ध थयुं छे। वल्लभभाई पटेल आगेवानी में खेडूतों ने ना करनी लड़त चलावीने ते देशनी स्वतंत्रता संग्रामनी पीठिका बनी गई। आ अहिंसक सत्याग्रहनी सफलताए वल्लभभाई पटेल ने सरदारनु बिरुद अपनाव्या। किसानों ने तथा अन्याय सामे सरदार साहेबे ખેડૂત હિતકારી અભિગમ અપનાવ્યો હતો। કિસાન શક્તિને પોતાના અધિકાર માટે એકજૂટ, સંગઠિત અને સશક્ત કરવાનું કામ ખેડૂત પુત્ર સરદાર સાહેબે કર્યું હતું। એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત સંકલ્પના પ્રેરણા સ્ત્રોત વિશ્વ નેતા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી 21મી સદીમાં ખેડૂતો સશક્તિકરણ અને આત્મનિર્ભરતા માટે एवी ज क्रांतिकारी पहलो साहेबे करी छे। आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेबे एवी ज मक्तमता अने राष्ट्र एकताना निर्धार साथे ऑपरेशन सिंदूरनी सफलता पण मेळवी छे। ऑपरेशन सिंदूरनी ज्वलन सफलता माटे वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी अने देशनी सेनाना जवानोने आपणा सौ वती खूब खूब अभिनंदन पाठवुं छुं। राष्ट्रहित प्रथमनो भाव अने गरीबों, वंचितों, खेडूतोना कल्याण ने प्राथमिकता आपनार वडाप्रधान श्री मोदी साहेबना सुशासन पण आज 11 वर्ष पूर्ण थईने आगळ वधी रह्या छे। त्यारे आदरणीय मोदी साहेबने आ सफलता माटे समग्र गुजरात वती खूब खूब अभिनंदन पाठवुं छुं। मोदी साहेबना नेतृत्वमां आपणे आ 11 वर्ष कृषि, उद्योग, इकोनॉमी, ग्रामीण विकास, वंचितों कल्याण दरेक क्षेत्रे प्रगतिनी नवी ऊंचाईओ पार करी छे। तेमणे कल्याण योजनाओना साचा अर्थमां जमीन पर पण उतारी छे। देशना अर्थतंत्रनो आधार एवी खेती अने खेडूतोने प्रगतिशील अने आत्मनिर्भरता साथे समृद्धि अपाववा वडाप्रधानश्रीए कृषि कल्याणना अनेक नवा आयामो आप्या छे। ज्ञान एटले के गरीब, युवा, अन्नदाता અને નારી શક્તિના 4 પિલ્લર ઉપર વિકસિત ભારતનું નિર્માણ કરવાની તેમની નેમ છે। આ વિકસિત કૃષિ સંકલ્પ યાત્રા अन्नदाताને આત્મનિર્ભર અને સમૃદ્ધ કરવાના કૃષિ કલ્યાણ અભિગમનો જ એક ભાગ છે। ફૂડ સિક્યોરિટી સુનિશ્ચિત થાય, ખેત ઉત્પાદકતા વધે, ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટે તેવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય અને ધરતીનું સ્વાસ્થ્ય પણ સુધરે। आवा बहुविध कृषि हित व्यूह अपनावीने मोदी साहेबे 29मी मे थी 12 जून सुधी देश में अभियान शुरू कराव्युं छे। तेमनी ज प्रेरणाथी सरदार साहेबनी 150मी जन्म जयंती आपणे आ वर्षे उजवी रह्या छे। त्यारे सरदार साहेबनी कर्मभूमि बारडोलीमां अभियाननुं आजे समापन ए पण एक सुभग संयोग छे। वडाप्रधानश्रीना मार्गदर्शन हेठळ आ अभियाननी सफलता माटे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने
ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. આજનો આ કાર્યક્રમ સમગ્ર દેશમાં 2177 જગ્યાએથી લાઈવ આજે નિહાળી રહ્યા છે, ત્યારે આવું આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું. એક સમયે આપણો ખેડૂત વરસાદની ચાતક નજરે રાહ જોતો અને આકાશી ખેતી જ કરતો હતો. દર 2 વર્ષે દુકાળની પરિસ્થિતિ, પાણીની તંગી, પૂરતી વીજળીનો અભાવ એવી દયાનક સ્થિતિમાં ખેડૂત અને ખેતી બે હતા. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આ સ્થિતિને સુધારવા નર્મદાના નીર છેવાડાના વિસ્તાર સુધી પહોંચાડવાનું ભગીરથ કાર્ય કર્યું છે. નર્મદા આધારિત સુજલામ સુફલામ યોજનાથી ઉત્તર ગુજરાતના 8 જિલ્લાના 32 તાલુકાના 952 તળાવોને પાઇપલાઇન મારફતે જોડીને ખેડૂતોને સિંચાઈની સગવડ પૂરી પાડી છે. સૌરાષ્ટ્રના 11 જિલ્લાને નવપલ્લિત કરતી સૌની યોજના દ્વારા 115 ડેમમાં નર્મદાના જળ પહોંચાડાયા છે. વડાપ્રધાનશ્રીના દિશા દર્શનમાં રાજ્યમાં 1,87,000થી વધુ ચેક ડેમો દ્વારા આશરે 4.5 લાખ હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારને સિંચાઈનો લાભ મળે છે. ખેડૂતોને સિંચાઈની સાથે રાહત દરે ગુણવત્તાયુક્ત વીજ પુરવઠો અને વીજ પુરવઠો પણ અત્યારે તો 98% ગામોમાં આપણે દિવસે પણ વીજળી પહોંચાડી રહ્યા છીએ. પીએમ કુસુમ યોજના અંતર્ગત રાજ્યના 11,000થી વધુ ખેડૂતોને સોલર પંપ માટે 342 કરોડથી વધુની સબસિડી આપવામાં આવી છે. આદરણીય મોદી સાહેબે ખેતી અને ખેડૂતો માટે કરેલા આવા કલ્યાણકારી પ્રયાસોના કારણે રાજ્યના ખેડૂતો વર્ષમાં 2 સિઝન પાક ઉત્પાદન લઈ રહ્યા છે. હવે તો ગુજરાતના ખેડૂતો વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી રસાયણ મુક્ત ખેતી એટલે કે પ્રાકૃતિક ખેતીની દિશામાં પણ આગળ વધ્યા છે અને આજે રાજ્યમાં 10 લાખથી વધુ ખેડૂતો આ પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવી છે. અને આપણો ડાંગ જિલ્લો 100% પ્રાકૃતિક ખેતી કરતો જિલ્લો પણ બન્યો છે. આદરણીય મોદી સાહેબ 11 વર્ષના સુશાસનમાં ખેડૂત અને ખેતીને વધુ સશક્ત બનાવવા આપેલી અનેકવિધ યોજનાઓના લાભ રાજ્યના કિસાનોને મળતો થયો છે. જેમના જમીનના સ્વાસ્થ્યની જાળવણી માટે દેશમાં 25 કરોડ સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ આપવામાં આવ્યા છે અને તેમાં ગુજરાતમાં 2.15 કરોડ ખેડૂતોને સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ આપવામાં આવ્યા છે. દેશના ખેડૂતોને કિસાન સન્માન નિધિ દ્વારા 6,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે. તે નાના ખેડૂતો માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ છે. ગુજરાતમાં 19 સપ્તાહમાં 68 લાખથી વધુ ખેડૂતોને 20,000 કરોડ રૂપિયાની સહાય મોદી સાહેબે ખેડૂતોને ડાયરેક્ટ તેમના ખાતામાં પહોંચાડી છે. શ્રી મોદી સાહેબે ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ મળે તે સુનિશ્ચિત કર્યું અને રૂપિયા 1181 કરોડથી વધુના 1,56,000 મેટ્રિક ટનથી વધુ તુવેર અને રૂપિયા 849 કરોડથી વધુના 1.50 લાખ મેટ્રિક ટનથી વધુ ચણાની ખરીદી પણ આપણે આ વર્ષે કરી છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ ગત 1 દશકામાં કૃષિ ક્ષેત્રે મિકેનાઇઝેશન, ફૂડ પ્રોસેસિંગ અને સંગ્રહ ક્ષમતામાં વધારા સાથે બીજથી બજાર સુધીની એક આખી વેલ્યુ ચેઇન વિકસાવી છે. કૃષિમાં વેલ્યુ એડિશનના વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબના અભિગમથી આજે રાજ્યના ખેડૂતો માટે નવા 4 સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ અને 14 ગોડાઉનના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત આપણે અહીંયાથી કર્યા છે. આ તમામ પ્રકલ્પો રાજ્યના ખેડૂતોની પ્રગતિના ઉદ્દીપક બનશે એવો મને વિશ્વાસ છે. વડાપ્રધાનશ્રીના વિકસિત ભારત 2047ના સાકાર કરવા, અન્નદાતાને અગ્રેસર રાખવામાં આ વિકસિત કૃષિ સંકલ્પ અભિયાન મહત્વપૂર્ણ બનશે. વડાપ્રધાનશ્રીએ પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવવા, પાણી બચાવવા માટે અને વધુ વૃક્ષો વાવીને પર્યાવરણ જાળવવા માટેનું પણ આહ્વાન કર્યું છે. સૌ ખેડૂત ભાઈઓ આ બધા સંકલ્પો સાકાર કરીને વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત બનાવવા આપણે સૌ સાથે મળીને આગળ વધીએ એ જ અભ્યર્થના ફરીથી સરદાર સાહેબના ચરણોમાં વંદન કરીને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપના બહુમૂલ્ય